जो ग्रुप का एनालाइज करने की प्रोसेस है ना, वो आपकी माइंड सेट मतलब आपका लॉजिक बढ़ाता है। अलजेब्रा पेपर ही इसलिए है, आपका लॉजिक बढ़ाता है। और ग्रुप का एनालाइज करना मतलब ही एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, सॉलिड और बहुत ही अच्छा काम है। आप जरूर कीजिए और ये वीडियो तो देख ही लीजिए पूरा। I am Rahul Mapari, and today we are going to discuss one group of a particular order, and that is 57, group of order 57. Because I have read one question from GATE exam, और वो क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सोचा क्वेश्चन का आंसर ही क्यों निकाले, तो ग्रुप ही एनालाइज कर दे, राइट। सो द क्वेश्चन इज, let G be a non-cyclic group of order 57, then the number of elements of order 3 in that group। और वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो आपको टाइप करना था आंसर। तो कितने एलिमेंट हो गए ऑर्डर 3 के ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57 में, राइट। सो उसको एनालाइज कर लेते हैं। और दे हैव गिवन दैट लेट G be a non-cyclic group। So in non-cyclic group, how many elements of order 3 we have to find? We can find if it is cyclic also, right? So we just analyze in a two way, cyclic and non-cyclic, and then whatever calculation, from calculation, whatever we get the answer, okay? So let's start with a very interesting video, because I have a search on YouTube or Google. You have not you will not get much information on the group of order 57, right? So please watch a full video so that you will get the idea, okay? So group of order 57, I just write the question here. तो कितने हैं, राइट। सो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57, so order is 57, right? And in question they have mentioned particularly non-cyclic, right? But we can analyze in a two ways. Cyclic, if it is cyclic, then what will happen and how many numbers of particular order? And one is non-cyclic, okay. Whatever structure, we don't know actual structure of order, group of order 57, but whatever structure, because there are some very easy methods to find the elements of particular order in a cyclic group, and also from non-cyclic group also, right? So first case we take if it is cyclic, and then we come to the our proper question. This question is asked in a GATE exam, okay, and I think recently 2020 or 19, okay. Now if it is cyclic, group of order 57 cyclic, so we try to find first of all the common information about that order. Common, it is applicable for non-cyclic also and cyclic also. So the common information means what? Now we have one order, that number 57, and this is the group, right? So we know the basic properties of group, like the order of subgroup divides order of group, right? This is very famous theorem, one of the theorem, and its corollary is what? The order of elements divides order of group also. Order of element is also divides order of group. So from this information हम बहुत ही इजीली दो चार नंबर लिख सकते हैं कि पहले तो इसके डिवाइजर निकाल लेंगे, चाहे वो साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो। ये थ्योरम जो दो मैंने बोले, कोरोलरी और थ्योरम, वो दोनों का अप्लीकेबल है। तो कॉमन इंफॉर्मेशन में बोलूंगा उसे कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है अगर ग्रुप के ऑर्डर 57 है? तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकती है? जो कि डिवाइजर है, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली डिवाइजर वाला एलिमेंट होना ही चाहिए, तो फिर तो साइक्लिक के लिए तो 2 हो जाएगा, नॉन साइक्लिक के लिए नहीं होगा, इसीलिए मैंने पॉसिबल ऑर्डर लिखा, ओके। सो पॉसिबल क्या है? 1 डिवाइड करता है 57 को, राइट। एंड देन 3, 2 तो नहीं करेगा डिवाइड, राइट। 3 भी डिवाइड करता है। एंड वन मोर नंबर इज 19,
19, राइट, क्योंकि 19 भी डिवाइड करता है और 3 और 19 के बीच में कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, आप चेक कर लीजिए। और एक है नंबर जो कि 57 खुद को तो डिवाइड करेगा, राइट, लेकिन ये जब 57 की हम बात करेंगे तो साइक्लिक के लिए, क्यों? क्योंकि अगर 57 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट उस ग्रुप में है तो वो तो साइक्लिक बन जाएगा, मतलब जनरेटर मिल जाएगा, राइट। तो 57 तो साइक्लिक, ये मैंने इसीलिए पॉसिबल बोला है क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए ये पॉसिबल नहीं है, राइट, सो पॉसिबल, ओके। तो एक तो काम करता हूं मैं, 57 लिखूंगा ही नहीं यहाँ पे, 57 मैं इस साइड से लूंगा साइक्लिक के लिए, क्योंकि 57 ये नॉन साइक्लिक के लिए होगा ही नहीं, राइट। लेकिन ये तो कंफर्म होगा, साइक्लिक के लिए भी होगा और नॉन साइक्लिक के लिए भी होगा। क्यों होगा? एक और रिजल्ट है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन दैट ग्रुप मस्ट हैव द एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर, दैट प्राइम ऑर्डर। मतलब यहाँ पे देखिए 1 का तो होगा ही, नॉन साइक्लिक साइक्लिक की बात ही नहीं, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है, उसके सिवा ग्रुप नहीं बनेगा, ओके, कंफर्म हो गया। 3 इज अ प्राइम एंड इफ प्राइम डिवाइड्स द ग्रुप ऑफ ऑर्डर, देन उसको भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट होना ही चाहिए, प्राइम है इसलिए, ओके। नॉन प्राइम के लिए वो कंपल्सरी मतलब ट्रू नहीं होगा। 19 इज अ प्राइम, तो 19 ऑर्डर का एलिमेंट चाहे साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो, होना ही है, होना ही। 57 मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि 57 प्राइम नहीं है पहली तो बात, और 57 ऑर्डर का एलिमेंट हो तो साइक्लिक में जाएगा, राइट, नॉन साइक्लिक में रहेगा ही नहीं। और 57 ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं तो फिर नॉन साइक्लिक में ही जाएगा, साइक्लिक में आएगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए मैं सेपरेट करता हूँ उसे। आप बात को समझिए, ठीक है। 57, चलिए बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक की आपको पता है साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको बता दूं, एकदम इजी वे। वट एवर डिवाइजर ऑफ दैट ग्रुप, वट एवर डिवाइजर ऑफ दैट ग्रुप, उस हर डिवाइजर की मतलब उस जो भी डिवाइजर हम लेंगे उस ऑर्डर का एलिमेंट उस ग्रुप के पास होना ही है। जो भी नंबर डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का कम से कम एक, बाकी तो निकालने पड़ेंगे, राइट, 5 ऑफ n से, तो कम से कम एक एलिमेंट होना ही है। तो साइक्लिक के लिए तो सिंपली मैं ये कॉमन इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ तक, राइट। लेकिन साइक्लिक के लिए अगर पर्टिकुलर हम डिस्कस करें तो इसके डिवाइजर निकालेंगे 1, 3, 19 एंड नाउ आई कैन राइट 57 हियर, नो डाउट, विदाउट डाउट आई कैन राइट, राइट। अब कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे देखिए, तो 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5 ऑफ 1। ये 5 ऑफ 1 क्या है? d ऑफ n और phi ऑफ n। सो आइलर phi फंक्शन है जहाँ पे नंबर ऑफ कोप्राइम एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। उस पे बहुत 2 फंक्शन पे, थ्योरेटिकल फंक्शन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, मतलब ये कैसे वर्क करता है, ओके। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि साइलो भी आएगा डिस्कशन में नॉन साइक्लिक के, तो मैं हर चीज तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ओके। सो साइक्लिक के लिए 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए? 5 ऑफ 1, एग्जैक्टली। और 5 ऑफ 1 क्या होता है? 1। अब कैसे होता है वो फॉर्मूला वगैरह है, देख लीजिए, ठीक है। 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट इसमें रहेंगे? 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 3। और 5 ऑफ 3 क्या होता है? एज इट इज प्राइम, ये प्राइम है तो p-1, तो 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के साइक्लिक में। तो यहाँ पे देखिए अगर आंसर मतलब किसी ने 2 लगाया है, 2 लगाया है, तो यही तो इंफॉर्मेशन है, कीवर्ड नॉन साइक्लिक बोला है, तो यहाँ पे हम आने के हैं अभी, राइट। तो साइक्लिक है तो 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट हो गए सिर्फ। 19 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए? तो 5 ऑफ 19। और 5 ऑफ 19 क्या होगा? एज 19 इज अ प्राइम नंबर, सो p-1, p-1 मीन्स 18, 18 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 19। अब बात रही 57 की, तो 57, 5 ऑफ 57, 5 ऑफ 57, तो 5 ऑफ 57 कितने बनेंगे? आप तो आइलर फार्मूला वो वहां से भी जा सकते हैं, अदरवाइज बचे ही क्या? 1 + 2 3, 3 + 18 21, जो भी 57 में से आप 21 निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा एक नंबर कोई, राइट। और फार्मूला से भी आप जा सकते हैं 36। अब टोटल कीजिए आप कैलकुलेशन, ठीक है तो ठीक है, लेकिन वो होता है उतना, ठीक है। सो 57 एलिमेंट, तो ये तो होगा साइक्लिक का पूरा, मतलब एक साइक्लिक ग्रुप अगर होगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा कि ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट, ऑर्डर 19 के 18 एलिमेंट, ऑर्डर 57 के 36 एलिमेंट, मतलब 36 जनरेटर इस ग्रुप के पास अगर साइक्लिक है तो।
बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। चलिए ठीक है, ये क्लियर है, 57 एलिमेंट हमें टोटल मिल गए यहाँ से। ओके, नॉन साइक्लिक की बात करते हैं, और नॉन साइक्लिक के लिए हम साइलो थ्योरम का थोड़ा सा यूज करेंगे। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा कि क्या होता है। ओके, नॉन साइक्लिक, अब सीधी सी बात है, नॉन साइक्लिक अगर बोला है तो इसके भी डिवाइजर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है साइक्लिक के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, जो कि आइडेंटिटी होता ही है 1 ऑर्डर का। प्राइम 3 डिवाइड करता है, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होना ही है, चाहे साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक, तो यहाँ पे भी होगा। 19 डिवाइड करता है, प्राइम है, तो उसका एलिमेंट एटलीस्ट 1, जितने भी होंगे तो उसका एलिमेंट होना ही है, नो डाउट, चाहे साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो, प्राइम के बारे में। लेकिन क्या मैं यहाँ पे 57 लिख सकता हूँ? अगर मैंने लिखा तो हम जो मान के चल रहे हैं नॉन साइक्लिक, वो मतलब उसको ही कॉन्ट्राडिक्शन दे देंगे हम, क्योंकि 57 मतलब ग्रुप के ऑर्डर इक्वल, इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एटलीस्ट 1 एलिमेंट, देन दिस ग्रुप विल बी साइक्लिक, इट हैज अ जनरेटर। सो 57 का तो नॉन साइक्लिक में होगा ही नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। अब बचे 3 नंबर सिर्फ, बहुत ही अच्छे ऑर्डर है 57, बहुत अच्छी ऑर्डर लगी मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि 3 ही डिवाइजर है, उसमें भी एक जो है वो 1, तो वो तो आइडेंटिटी एक ही एलिमेंट रहेगा, उसके 4-5 एलिमेंट नहीं रहेंगे, तो बचे 2 नंबर सिर्फ 3 और 19। 57 भी नहीं ले सकते इसमें, करेक्ट? तो इतना सिंपल एक कैलकुलेशन होगा, लेकिन एलिमेंट निकालना थोड़ा, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रॉपरली, थोड़ा साइलो थ्योरम की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और साइलो थ्योरम की तरफ हम कैसे जाते हैं? देखिए, साइलो के 3 थ्योरम है, जैसे एग्जिस्टेंस है, और वो जो कॉन्जुगेट, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट भी देता है सब ग्रुप के, और भी एक है नंबर ऑफ पीएसएसजी भी देता है। तो 3 थ्योरम डिवाइड कर लीजिए, एग्जिस्टेंस, पीएसएसजी का एग्जिस्टेंस, पीएसएसजी पे भी चलता है, ये कीवर्ड आप देख लीजिए एक बार, पीएसएसजी, मैं शॉर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं पी साइलो सबग्रुप, ठीक होगा, पी साइलो सबग्रुप। तो ये है कि नहीं एग्जिस्टेंस, तो ये पहला थ्योरम। दूसरा, मैं शायद नंबर आगे पीछे कर दूं, लेकिन सेकंड रिजल्ट है, साइलो थ्योरम है कि वो सबग्रुप के कॉन्जुगेट भी देता है, राइट? और तीसरा एक है कि नंबर ऑफ पीएसजी, पॉसिबल नंबर ऑफ पीएसजी कितने हैं, वो भी देता है। तो हमें जो जिसकी जरूरत है, थर्ड वाला जो मैंने बोला कि नंबर ऑफ पीएसएसजी, तो उसी को यूज करना है। अब उसका सिंपल सा फंडा मैं लिख देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए 1 प्लस के पी, ये जो नंबर है, ये इसको मतलब एन मैंने लिया है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसको डिवाइड भी करना चाहिए, तो पॉसिबल के कितनी वैल्यू है उतने पीएसएसजी होंगे, हम यहाँ पे एक्चुअल करके देखेंगे, राइट? कितने पॉसिबल के की वैल्यूज के लिए ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे एन क्या, आप अगर आपको बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला यूज करना है, थर्ड वाला। अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो 19 एसएसजी कितने हैं। अब 19 एसएसजी मतलब आप ये मत सोचिए कि मतलब 19 सब ग्रुप होंगे, नहीं नहीं, जो 19 एसएसजी, ये जो बात होती है, ये प्राइम नंबर की बात होती है सिर्फ। 19 एसएसजी, पी एसएसजी, सो 19, 3 एसएसजी, पी इक्वल्स टू 3, पी इक्वल्स टू 19, लाइक दिस। कितने हैं ये तो निकालना पड़ेगा यहाँ से। ओके, चलिए एकदम शांति से बिल्कुल इसको समझिए, क्योंकि ये मेन है, साइक्लिक तो सिंपल हो जाएगा, राइट? अब देखिए 19 एसएसजी निकालता हूं, तो मैं 19 एसएसजी कितने होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57 के पास 19 एसएसजी कितने होंगे। ये टेस्ट आप द ग्रुप इज नॉट सिंपल के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपने यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप दिखाया किसी भी ग्रुप को, तो वो नॉट सिंपल बोला जाता है, राइट? तो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ ग्रुप, उसके लिए भी ये यूज होता है, आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, तो 19 एसएसजी निकाल दो, तो 1 प्लस के 19 है ना, p इक्वल टू 19 रखा मैंने। ये नंबर डिवाइड करना चाहिए n को, n ग्रुप ऑफ ऑर्डर, और वहां से भी 19 इंटू 3 ही है 57, 19 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 लिखा तो भी चलेगा, या फिर 57 लिखा तो भी चलेगा, या फिर 3 इंटू 19, राइट? तो 19 तो वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कभी वो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, 19 अगर ऐड करे तो बाद में कोई डिवाइड ही नहीं करेगा। तो चलिए ठीक है, मोटा मोटा मान लेते कि 57। अब मुझे निकालना है k की वैल्यू, कि k इक्वल टू मैं क्या वैल्यू पुट करूं वहां पे, क्या वैल्यू दूं k को कि ये नंबर इसको डिवाइड करे। अब जितनी वैल्यू मैं पॉसिबल दे सकता हूं k के लिए, उतने 19 एसएसजी होंगे,
आप समझ रहे कि 19 एसएचजी वो एक कीवर्ड है सॉलिड, 19 डैश एसएचजी और 19 साइलो सब ग्रुप। ओके, तो कितने होंगे ये नंबर देगा। अब के इक्वल टू मैं क्या रखूं, पहले तो 0 रख देता हूं, 0 से स्टार्ट करता हूं, के फ्रॉम 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो के 0 रखता हूं, तो रख के देखेंगे यहाँ पे के इक्वल टू 0, राइट, जस्ट पुट के इक्वल टू 0 हियर, 0 इंटू 19, 0, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 एंड 1 डिवाइड 57। ओके, इस नंबर ने काम किया, इट वर्क्स, तो एक नंबर हो गया मेरे पास। चलिए दूसरा 1 ट्राई करते हैं, 1 here if I put k equals to 1 into 19 19 plus 1 20 and 20 divides 57, no it means 1 not possible, एक ही नंबर मिला अब तक 0, राइट, 1 ने काम नहीं किया, it does not work। if I put 2 19 into 2 38 plus 1 39 divides 57, no, so we cannot put k equals to 2 and up to so on। if you try to put k equals to 3 4 5 6 7 and so on, कोई भी नंबर काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं, एक्सेप्ट k equals to 0, कोई नहीं काम करेगा, राइट। सो वी गेट, कितने मिले 19 एसएचजी, सो वी हैव ओनली, और वी कैन से यूनिक 19 एसएचजी साइलो सब ग्रुप, यूनिक, एक ही मिला 19 एसएचजी, राइट। आप साइक्लिक में भी जाते ना तो भी यूनिक ही मिलता। ओके, सो हमने यहाँ पे जब ऑर्डर ली तो यहाँ पे साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात ही नहीं की। जब यहाँ से शुरू है 19 एसएचजी निकालने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात नहीं की, वो कॉमन रहता है किसी भी ग्रुप के लिए। ओके, तो चलिए फाइनली यूनिक 19 एसएचजी मिला। अब 19 एसएचजी मतलब 19 साइलो सब ग्रुप, तो उसके ऑर्डर भी 19 ही है, उसके ऑर्डर भी 19 ही है। अब उसकी ऑर्डर, क्योंकि 19 पावर तो कुछ है नहीं, 3 यहाँ पे लिखा था मैंने, 3 into 19 ऐसा ही है, राइट। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो बात अलग ऑर्डर की, 19 एसएचजी हैविंग ऑर्डर 19 स्क्वायर और 19 क्यूब और 90 ऐसा, क्योंकि ये रहती है उसके ऑर्डर 19 क्यूब लाइक दिस, राइट। लेकिन यहाँ पे पावर 1 ही है तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात ही नहीं है यहाँ पे, राइट। आप थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ लेना एक बार। तो चलिए ये थोड़ा सा अब क्लियर करते हैं कि यूनिक 19 एसएचजी मिला। ओके, राइट। अब इस पे बात करते हैं, इसकी ऑर्डर क्या होगी, 19। अब एक ग्रुप में उसको सपोज डिनोट करता हूँ H से, जिसकी ऑर्डर है 19, तो इसको एनालाइज कर लो एक बार। अब 19 ऑर्डर के ग्रुप के लिए क्या एनालाइज करना, सब ग्रुप के लिए, सपोज सब ग्रुप भी तो ग्रुप ही होता है इटसेल्फ, राइट। तो उसके लिए क्या एनालाइज करना है, इसकी प्राइम ऑर्डर है, और प्राइम ऑर्डर है तो 2 ही डिवाइजर है, 1 और 19 इटसेल्फ। अब 1 ऑर्डर वाला तो एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी। बाकी जितने भी 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट क्या ऑर्डर होंगी, 19 ऑर्डर होंगी, राइट। इसमें 18 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 19, राइट। एंड +1 लिखता हूं, आइडेंटिटी, +1 आइडेंटिटी, सो टोटल 19 ऑर्डर का सब ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर है आपका 57, सॉरी ऐसा 15 क्यों लिखा, 57 को, टोटल नंबर है आपके पास 57, नॉन साइक्लिक में के केस में है हम। वहां से एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल देता हूं मैं, क्योंकि उसकी ऑर्डर 1 होती है। आपको क्या पूछा, ऑर्डर 3 के एलिमेंट, राइट, ये भी मत भूलिए। और हम 19 के भी निकाल चुके हैं, राइट। उसके बाद 19 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है नॉन साइक्लिक में 19 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट। अब चलिए 1 था, 19 था, उसके बाद 3 है, राइट, और 57 तो हम ले नहीं सकते नॉन साइक्लिक में, क्योंकि वो तो साइक्लिक बन जाएगा, 57 की बात ही नहीं। तो 1 था, 19 था, अब 3 बचा सिर्फ, मतलब जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो किस ऑर्डर के होंगे। अब ऐसा एक ग्रुप है जिसमें 57 एलिमेंट है, एक एलिमेंट जो हमें मिला यहाँ पे, कोई भी मैं ई लिख देता हूँ, ये 1 ऑर्डर का है, यहां से लेके यहां तक मतलब 18 एलिमेंट्स 19 ऑर्डर के हैं, 18 एलिमेंट्स। अब बाकी ये जो बचे, इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी, 19 के 18 ये कंफर्म हो गया, राइट, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूनिक एसएचजी मिला है 19 एसएचजी।
अब इसकी ऑर्डर तो 3 होनी है बाकी एलिमेंट की। 57 वाली केस है ही नहीं इसमें क्योंकि नॉन साइक्लिक है। अब जो भी बचे वो 3 ऑर्डर के होंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 57 -1 -18 इज टू 38। 38 एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर 3 के नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57 में। कितने होंगे? 38। आंसर इज 38। ओके, सो इस क्वेश्चन के माध्यम से we analyze actually the group of order 57 totally, cyclic, non-cyclic, whatever possible order, what is silo भी आ गया इसमें, right, Euler phi फंक्शन भी आ गया, बहुत कुछ आया। लेकिन आपको यहाँ से कुछ मैंने की पॉइंट दिए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी डिटेल में है वो देखना है। पहली बात, थ्योरेटिकल नंबर फंक्शन देख लेना, आयलर फाइ, उसके साथ साथ डिवाइजर फंक्शन भी देख लेना, बहुत काम का है। और मेरा एक वीडियो दोनों फंक्शन पे एक ही वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद साइलो थ्योरम के 3 फॉर्म मैंने बताए, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन उसमें क्या क्या निकल के आ रहा है। साइलो थ्योरम के मैंने 3 फॉर्म बताए अलग अलग, जो कि अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा उसका इसेंस बता दिया। अब डिटेल में उसका जो थ्योरम के स्टेटमेंट है वो देख लेना। और उसमें से हमने थर्ड वाला नंबर ऑफ पीएसएसजी वो यूज किया, तो आपको साइलो थ्योरम भी, साइलो पैकेज वो 3 थ्योरम का वो भी देखना है। ओके, और ग्रुप को कैसे एनालाइज करते हैं 2-3 केसेस में, नॉन अबिलियन, अबिलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक बट नॉन सॉरी अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, लाइक दिस। तो कैसे एनालाइज करना है, एक वे ऑफ एनालाइजेशन भी आपको इस प्रोसेस से शायद पता चल गया होगा। ओके, सो मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए भी शायद खुशी की बात होगी कि मैं जल्द ही अनअकैडमी पे कोर्सेस मतलब लाइव पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पे जो है वो रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख पाते हैं, जहाँ पे टाइमिंग भी ठीक से, मतलब मेरा भी कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से नहीं होता है। लेकिन जल्द ही मैं अनअकैडमी पे मेरे कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, आप बाकी एजुकेटर को भी देख सकते हैं। और मैं भी बहुत जल्दी वहाँ पे अनअकैडमी पे आने वाला हूँ। सो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।